Ladies and gentlemen, good day and welcome to Ashapuri Gold Ornaments Limited Q3 and 9 months FY26 results earnings conference call hosted by Kirin Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. Before we begin, a brief disclaimer. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance, and it may involve risks and uncertainties that are difficult to predict. I now hand the conference over to Mr. Ganesh from Kirin Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you everyone for joining the conference call of Ashapuri Gold Ornament Limited. From the management team, we have Mr. Jitendra Kumar Soni, Joint Managing Director, and Mr. Jainik Soni, Chief Executive Officer. With that, now I hand over the call to Mr. Jitendra Kumar Soni for the opening remarks. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. A warm welcome to all participants joining us today for the Ashapuri Gold Ornament Q3 and 9-month FY26 earning calls. Thank you for taking the time to join us and for your continued interest in our company. We are delighted to report another good quarter of performance in Q3 FY26, with PAT growing by 7.76% year-on-year and EBITDA grow with 22.01% year-on-year. Our EBITDA margin expanded by 233 basis points to 8.78%, and the PAT margin improved by 103 basis points to 6.1%. This remarkable improvement reflects our discipline, execution, operational efficiency, and the inherent strength of our B2B jewelry business model. We are equally pleased with the strong momentum in volume this quarter. Total income increased by 5.64% year-on-year in 9-month FY26, driven by substantial demand for our differentiated product portfolio and increased acceptance of our design-led offering among leading retail chains and big box clientele. This continued the growth in sales, which demonstrate the strong market appetite for our jewelry collections and validate our strategy of building scale while ensuring product excellence. Despite recent volatility in the commodity market and rising gold price, the underlying demand for organized design-led jewelry remains resilient, supported by steady retail offtake going forward. We will focus on expanding our presence in high potential domestic market, supported by strengthening regional aligned sales force to deepen engagement with our organized jewelry retailers. These initiatives are aimed at driving sustainable revenue growth while maintaining margin discipline. Thank you. So can we begin for Q&A session? Yes, we can. Okay, sir. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may please press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Arvind Jadhav, an individual investor. Please go ahead. हेलो. Yes, sir. या हम लोग का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो नेगेटिव दिखा रहा है.
Yes. 9 मंथ का भी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो Yes. इनिशियली आपने जब आपको पूछा गया था कि रेवेन्यू गाइडेंस, तो आपने बताया था हम रेवेन्यू गाइडेंस नहीं बताते बट वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर जाएंगे, और आपने बताया था कि 20% वॉल्यूम ग्रोथ का आपका टारगेट है। Yes. एंड ये तो 9 मंथ में तो फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ है, तो फिर ये Q4 में कैसा रहेगा? देखिए, ये कुछ अभी जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि अभी जो करंट रिसेंटली ये क्वार्टर में जो गोल्ड प्राइस का जो मोमेंटम हुआ है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो हमने जो प्रिडिक्शन किया था 20% सेल्स इन क्वांटिटी का ग्रोथ का, उसमें ये डिमांड वहाँ पे कहीं ना कहीं ये गोल्ड प्राइस की वजह से उसका इम्पैक्ट आया है, जो इस क्वार्टर में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इतनी सारी मूवमेंट होने के बाद, इतने सारे गोल्ड प्राइस सडनली 50% बढ़ने के बाद भी हम लोग अगर 9 मंथ का कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से, तो भी हम इक्वलेंट अभी चल रहे हैं, विच इज हम अगर मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो हम इसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि 40 to 50% का गोल्ड प्राइस इंक्रीज होना विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, और उसमें भी हम अगर लास्ट ईयर के जितना क्वांटिटी में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो समझो उसको भी मैं अगर डिस्काउंट करूं तो भी यहाँ से अगर वो गोल्ड प्राइस अगर इतना हाइक नहीं हुआ रहता तो अपने वो क्वांटिटी अचीव कर पाते। तो ये शॉर्ट टर्म का पेन गिन सकते हैं जो इस क्वार्टर पे आया है, और ये अभी गोल्ड प्राइस कहीं ना कहीं सस्टेनेबल हुआ है अभी लास्ट 10 to 15 डेज में। तो अभी मार्केट का डिमांड वापस से ऑन गोइंग होना शुरू हुआ है, तो ये जो समझो कि भी जो गैप आया है वो अगले 1 या 2 क्वार्टर में उसका रिकवरी होगा। तो मतलब आप Q4 और Q1 ऑफ FY27 में 20% ग्रोथ आएगा, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, हम वही पॉजिटिव अप्रोच रख के चलते हैं, क्योंकि वो देखिए डिमांड डायरेक्ट टू कनेक्ट गोल्ड प्राइस से ही है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि गोल्ड प्राइस में इतना मूवमेंट होना, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अभी जो कस्टमर जो बायर है वो अभी होल्ड पोजीशन पे है, अगर उसको लेना है तो अभी वेट कर रहा है। तो हो सकता है कि भी ये क्वार्टर में जब तक ये भाव अगर मूवमेंट सही हो गया और इतना वॉलेटिलिटी नहीं आएगा गोल्ड प्राइस में, तो अगेन द कस्टमर वापस से स्टोर पे आना शुरू हो जाएंगे और बाइंग शुरू कर देंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ऑब्वियस इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में होने वाला है। और अभी जो जैसे ये गोल्ड प्राइस स्टडी हुआ है, तो वहां से जो मार्केट में जो डिमांड निकली है वापस से, उससे भी हमको आगे का प्रिडिक्शन लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिकवरी होने में अपने को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग को FY27 का गाइडेंस कुछ दे सकते हैं वॉल्यूम का? FY27 का नो, FY27 का हम अभी नहीं देंगे। अभी तो हम इस ईयर के ऊपर ही फोकस करेंगे कि इस ईयर का जो हमारा टारगेट है 20% या 15% का ग्रोथ लाना, तो ये क्वार्टर में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सके, उसी के ऊपर हमारा स्टिल फोकस है। तो मतलब हम लोग का Q4 में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा नियर अबाउट 20% ग्रोथ के लिए, वॉल्यूम ग्रोथ के लिए। यस सर, यस सर, ये क्वार्टर ही है जहाँ पे हमको अभी जो डिमांड भाव स्टडी हुआ है, तो स्टडी की वजह से जो डिमांड अभी आ रही है, तो उसको हम अभी रिकवर करने के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई इसी साल का जो अपना टारगेट है वो अचीव हो जाए। ओके, तो यूटिलाइजेशन लेवल पे 52% ही है, तो वो भी उसकी वजह से ही है सब, मतलब उसके लिए बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर ये गोल्ड प्राइस का मूवमेंट नहीं रहता समझो, तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम यहाँ से हमको 20% का सीधा ही ग्रोथ रहता, तो उसका इम्पैक्ट यूटिलाइजेशन पे आता ही आता। तो ये इसको तो हम ऐसे गिनते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर से एनालिसिस गोल्ड प्राइस की मूवमेंट से, इससे अच्छा थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म पे देखेंगे। तो इस सब प्रोसेस अगर गोल्ड प्राइस स्टडी हो गया तो वापस से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसको बाइंग करने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होगा, तो वापस से डिमांड उसको हिट करना शुरू हो जाएगी। जो हमको अभी 10 दिन से जो अभी जो प्राइस स्टडी हो गया, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है मार्केट में कि कस्टमर वापस से बाइंग करना शुरू कर दिए हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये बिकॉज ऑफ ये प्राइस हाइक जो हुआ है गोल्ड में, तो इसकी वजह से भले हम लोग का कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, बट बाकी कंपनी का देखेंगे तो सबका रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 40 to 50% के रेंज में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक, और हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी एकदम फ्लैट ही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है
कि पूरे सेक्टर में हमारा एक ही कंपनी ऐसा है कि जो इतना कम पीई से वो चल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर लूजिंग, शेयर होल्डर इज ऑल्सो लूजिंग, प्रोमोटर इज ऑल्सो लूजिंग. सो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे? ये दोनों तरीके से देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि एज ए B2B मैन्युफैक्चरर कंपनी हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी के कितना टर्नओवर हुआ है, उससे उसका कोई एज ए मैन्युफैक्चरर कोई एनालिसिस बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये गोल्ड प्राइस का जो लास्ट एक साल से मूवमेंट चल रहा है तो उसका इम्पेक्ट तो वहाँ पे आने वाला ही है. लेकिन समहाउ क्वांटिटी टर्म्स पे बात करेंगे तो वो रियलिस्टिक एनालिसिस होगा अकॉर्डिंग टू अस, और हमारा मैनेजमेंट भी वही स्टैंड लेके चल रहा है और हम उसी पे बात करेंगे. अच्छा, क्वार्टर 1 में हम लोग ने बताया था कि प्रमोटर ये होल्डिंग इंक्रीज करने वाला है कंपनी में, तो टिल क्वार्टर 3 तो उसमें कुछ हुआ नहीं है. तो ऐसा कोई प्लान है आगे जाके? नहीं, हमने प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज करने वाला ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं है सर. ओके, तो बट ऐसा कुछ है आपका आगे जाके करना, इंक्रीज करना? वो तो देखिए सर, अभी उसका तो जैसे नीड रहेगा, जैसे लगेगा कंपनी को, प्रमोटर को, उस तरीके से करेंगे. अभी ऐसा अपना ऐसा कुछ सोचा नहीं है. ठीक है, राइट टाइम पे सब डिसीजन होता है, उसमें उस तरीके से करेंगे. ओके, और आप FY27 के लिए कुछ वॉल्यूम, रेवेन्यू ग्रोथ ऐसा कुछ टारगेट दे सकते हो? वो क्वार्टर 4 खत्म होने के बाद Q1 पे सब चीजें कैसे स्टडी होती है, उसके ये क्वार्टर 4 के बाद ही हम उसका आगे का कुछ FY27 का गोल बना सकेंगे. ओके सर, थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यस सर. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one now. Participants who wish to ask questions may please press star and one at this time. The next question is on the line of Raj from Shah Ventures. Please go ahead. Okay, yeah. So hi, good afternoon. So I have some couple of questions that I want to cover. Basically, how is the order pipeline shaping up after IIJS premiere and upcoming IIJS signature exhibitions? हेलो. Hello. तो गुड आफ्टरनून. सो IIJS प्रीमियर का जो ऑर्डर हम लोगों ने बुक किया था, उसका डिस्पैचिंग ऑलमोस्ट क्लियर होने में है, और मतलब वो थोड़ा बहुत ही 80% तो डिस्पैच हो भी चुका होगा, और उसमें अभी जो भी अब ऑन गोइंग डेली डिस्पैचिंग चल रहा है, तो मे बी IIJS प्रीमियर का 80 to 90% डिस्पैच हो चुका है. IIJS सिग्नेचर की जो बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो ऑर्डर बुकिंग है वो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 60 डेज में उसको हम डिस्पैच कर लेंगे. उसमें भी ऑलमोस्ट 80% जैसा डिस्पैच हो चुका है. और अभी जो नई जो गोल्ड प्राइस का जो मूवमेंट अभी स्टडी हुआ है, उसके बाद में जो हमारे पास 2 नेशनल चेन से काफ़ी अच्छा ऑर्डर आया है, और वो ऑर्डर जो आया वो 18 कैरेट में आया है. तो समहाउ हम लोगों ने जो गोल्ड प्राइस जो बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली जो कस्टमर को अफोर्डेबल ज्वेलरी कैसे मिले, तो उसका भी हम लोगों ने इस क्वार्टर में R&D किया है कि 18 कैरेट पे हमारी हैंडमेड ज्वेलरी को कैसे हम उसको मेक कर सकते हैं. उसमें भी हमको काफ़ी अच्छी सफलता मिली है. शिफ्टिंग ये 22 कैरेट का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैंडमेड ज्वेलरी में 18 कैरेट में अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट है इंडस्ट्री के लिए. समहाउ हम लोग ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर की तरीके से हमारा जो SOPs है, उसमें हम लोगों ने R&D बहुत किया, और 18 कैरेट में हमको सफलता मिली है, और उसी के रिजल्ट के तौर पे हमको 2 नेशनल चेन स्टोर से काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है. अभी जस्ट रिसेंटली ही ऑर्डर आया है मेरे पास, जो 18 कैरेट में बनाने का ऑर्डर आया है. तो उसका भी फ्यूचर अभी लग रहा है कि भी समहाउ अगर ये कॉर्पोरेट्स जो नेशनल है वो 18 कैरेट में मूव करेंगे तो कंज्यूमर को पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा ज्वेलरी बाय करना. तो उसमें भी हमारे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है. अगर 18 कैरेट मार्केट में शिफ्ट हो रहा है तो वी आर फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन एंटिक ज्वेलरी हैंडमेड, वो भी हमारे पास एडवांटेज है. तो उसके भी हमको ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे. Okay. And sir, when I
दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को आपके कस्टमर्स के बारे में जानना था। सो बेसिकली आप लोग आपके एग्जिस्टिंग आपके जो क्लाइंट्स है उसमें आप क्या ग्रोथ देखते हो, मतलब आपका ऑर्डर साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो आपके जो नए क्लाइंट्स है वहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर्स को मिला के। मेजरली अभी जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, उसमें जो कॉर्पोरेट्स नेशनल चेन्स है उसका वेटेज बढ़ रहा है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे सेल्स पे, तो और हमारा फोकस भी नेशनल चेन्स पे है, और उनका जो ग्रोथ है नेशनल चेन्स का, जिस तरीके से वो एक्सपांड कर रहे हैं, और हमारा भी लास्ट 1 साल से ही उनके ऊपर फोकस हुआ है कि भी कॉर्पोरेट में पूरा फोकस करेंगे। तो इस साल भी हमारा जो नंबर्स में जो हमको सपोर्ट मिला है वो ड्यू टू कॉर्पोरेट्स के सपोर्ट से ही मिला हुआ है। तो आगे उसकी जर्नी और भी हम उसको पैनलिंग करेंगे। कॉर्पोरेट की एक सेल्स टीम हम लोगों ने स्पेशल अलग से हायर की है, जो सिर्फ लुकिंग आफ्टर कॉर्पोरेट नेशनल चेन से उन्हीं को वो पिच करते हैं, उन्हीं से ऑर्डर लेते हैं। तो ये सभी हमारे जो ऑपरेशनल स्टेप्स है, जहाँ पे हमको कॉर्पोरेट्स का हमको वेटेज जो हमारा फोकस है बढ़ाने का, उसमें हमको काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उसी की वजह से उनका भी जो ग्रोथ होगा और उसी ग्रोथ से हमारा भी ग्रोथ होगा। ओके ओके। और सर आपका ये आपका लेटेस्ट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मतलब ऑनबोर्डिंग, मतलब आपके 2 नेशनल ज्वेलरी चेन से आपका लेटेस्ट स्टेटस क्या है उसमें? नहीं, दे आर ऑनबोर्डिंग विथ अस ओनली। हमको हमारे मतलब सभी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उनके ऑर्डर्स आने। एक कॉर्पोरेट तो हमारे पास काफी टाइम 2 साल से जुड़े हुए हैं, दूसरे कॉर्पोरेट्स भी हमारे पास अभी नया जो हम लोगों ने कलेक्शन उनको पिच किया है, उसमें हम लोगों ने उन लोगों ने हमको इम्पेनलिंग किया है, उसका एग्रीमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उनका भी ऑर्डर आ चुका है। ये सभी काम चल रहा है पैरेलली। ग्रेट ग्रेट। और मतलब ऐसा है कि अभी अभी कोई डिस्कशन लेवल पे नहीं है। ये सब चीजें कंक्लूड हो चुकी है, एग्रीमेंट कंप्लीट बन चुके हैं, और उनके ऑर्डर्स भी आने शुरू हुए हैं। ऑल्दो ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं या सेकंड ऑर्डर होते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वो लोग भी हमको धीरे धीरे ही ऑर्डर बढ़ाएंगे। पहला ऑर्डर हो सकता है वो थोड़ा कम दे, लेकिन हम हमारी क्वालिटी और टाइम डिलीवरी से उनको माल सप्लाई करेंगे, तो उनको भी कॉन्फिडेंट आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर की साइज बढ़ाते रहेंगे। ओके। सर ये गोल्ड का अभी प्राइस का भाव जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया है, तो उसके वजह से आपको मतलब आपका डिमांड में कोई शिफ्ट दिख रहा है क्या, मतलब स्पेशली ब्राइडल ज्वेलरी से लाइट ज्वेलरी की तरफ, उसका ट्रेंड आपको कैसे दिख रहा है? अभी देखो, यही हमारी भी चैलेंज है, हमारे लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। नॉट फॉर अस, पूरी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है कि इतने शॉर्ट फ्रेम में अगर इतना प्राइस बढ़ना, तो कंज्यूमर का अगर जो भी बजट है, वो बजट सीधा ही उसको मैनेज करना उसको लिए मुश्किल है। क्योंकि 50% प्राइस हाइक होना वो एकदम मतलब हिस्ट्री है ये, कभी इतना कभी प्राइस बढ़ा नहीं है गोल्ड का। तो इसके लिए इंडस्ट्री का जो चैलेंज था, उसमें मैंने आपको 18 कैरेट का इंट्रोडक्शन बताया। इंडस्ट्री भी नया नया आइडिया सोच रही है, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस कर रही है, और जो अपने पहले जो एसकेयूज थे ब्राइड कैटेगरी में, वो 100-150 ग्राम 200 ग्राम के भी हम लोग एसकेयू रखते थे, वो सब भी रिड्यूस करके अभी उसको हम 80 ग्राम 60 ग्राम में वही लुक आए, वही फील आवे, उस तरीके का सब इनोवेशन चल रहा है। और दूसरा शिफ्ट है कैरेटेज चेंज। वही जो प्रोडक्ट हम 80 ग्राम में जो 22 कैरेट की बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट हम 60 ग्राम में 18 कैरेट में बना सकते हैं, सेम साइज के अकॉर्डिंगली। तो वो भी हमारा R&D में हमको सफलता मिली है, और उसका हमको ऑर्डर्स भी मिले हैं कॉर्पोरेट से। तो ये सभी चीजें हैं जो अभी शिफ्टिंग जो चल रहा है, उसी के अपने मतलब हम लोग एडवांस में चल रहे हैं कि भी हमको दिख रहा है कि मार्केट उस तरीके से शिफ्ट होगा। तो हम अभी वो पोजीशन पे है, ड्राइविंग पोजीशन पे। अगर मुझे कोई कॉर्पोरेट ऐसा बोले कि 18 कैरेट में मुझे आपको काम करना पड़ेगा, तो हमको ऐसा R&D करने का या वो टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। हम लोग ऑलरेडी उसमें कंप्लीट है, रेडी है फॉर मेकिंग ऑर्डर ऑफ 18 कैरेट ऑल्सो। ओके ओके। ग्रेट। सर ये आपका
स्टोन के रिलेटेड बात करने का था। अभी मतलब स्टोन प्रोक्योरमेंट या आपके जो स्किल कारीगर जो अवेलेबिलिटी में कोई सप्लाई चेन जो है, मतलब उसमें कोई रुकावट वगैरह कोई देखने को मिल रहा है क्या? मतलब उनका वहाँ का सिचुएशन कैसा, स्टेबल है, कैसा है सर? हाँ नहीं, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। क्योंकि क्योंकि ये हमारे जो कारीगर है वो कोई ऐसे हमारे से कोई नए जुड़े हुए नहीं है, काफी सालों से हमारे साथ है। तो काफी सारे उतार चढ़ाव जो मार्केट के होते हैं सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कारीगर भी। तो उनको कॉन्फिडेंट है कंपनी में कि ये शॉर्ट पीरियड है, कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आया है अगर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रहा है। ऑल दो हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो लास्ट ईयर से 10% बढ़ा ही है, तो वो भी बात नहीं है। तो वो कारीगर का ऐसा कोई हमारा इश्यू नहीं है। ओके, ओके सर, चलेगा। थैंक यू सो मच सर। आपका बिजनेस के बारे में थोड़ा क्लैरिटी वगैरह अच्छा खासा मिला मुझे। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय धन्यवाद, साइड। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one now. Participants who wish to ask questions may please press star and one at this time. The next question is from the line of Vidhi Purohit from HNI Corporation. Please go ahead. Miss Vidhi, your line has been unmuted. Please go ahead. So as there is no response, can we go ahead? Hello. Yes, ma'am. Please go ahead. Okay. So, sir, are you seeing any shift from retailers towards consignment or job work models instead of outright purchases? And if yes, how is that impacting your business model? जॉब वर्क हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब वर्क मॉडल में भी हम लोग काम करते ही है। और वो तो सारे B2B पार्टी के ऊपर डिपेंड्स है कि उनको जॉब वर्क एडवांस मेटल पे काम करना है या आउटराइट पे काम करना है। तो हमारे पास तो दोनों ही ऑप्शन है। और हमारे पास जो नेशनल कॉर्पोरेट्स है उसमें है कई पार्टीज जो जॉब वर्क मॉडल पे काम करती है, आउटराइट पे भी काम करती है और आउटवर्क मतलब जॉब वर्क मॉडल पे भी काम करते हैं। Okay. Another question is like, how do you see competition evolving among organized jewelry manufacturers, and are pricing pressures increasing this B2B segment? No, as such, we are not in a stage that any competition, मतलब हम उसको कंपटीशन ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये डिजाइनिंग फील्ड है। और एंटीक ज्वेलरी में जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, उसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी या चैलेंज या कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है। सबका अपना अपना डिजाइन के ऊपर ही है फोकस। जितना डिजाइन के ऊपर फोकस रहेगा उतना ही उसका एडवांटेज है इसमें। तो मतलब ऐसा कोई कंपटीशन जैसी बात नहीं है, समहाउ ऐसे बात है। All right. So are you exploring adjacent categories like 14-karat jewelry or more machine-made jewelry to widen your product offering? Of course, we are introducing 14-karat jewelry in diamond polki segment. So before we gold price hike, we are doing our jewelry in 18-karat in diamond and polki. But now we are moving in 14-karat डायमंड और पोल्की में हम लोगों ने 14 कैरेट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया है। और लाइक मशीन की बात आप कर रहे हो, तो हमारे जो फ्यूजन कैटेगरी है हमारी जो कलेक्शन लाइन में, तो वो फ्यूजन कैटेगरी में भी हम लोगों ने काफ़ी डिज़ाइन इनोवेशन किए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने उसको कास्टिंग कंपोनेंट का पार्ट बढ़ाया है। लाइट वेट कास्टिंग के भी हम लोगों ने जो कास्टिंग का कंपोनेंट भी हम लोगों ने लाइट वेट में ऊपर बनाया हुआ है। तो वो मशीन मेड का भी इंट्रोडक्शन फ्यूजन कैटेगरी में है हमारा। Okay. So my last question is like, given the
volatility in gold prices, how are you balancing inventory levels and order execution? And has this had any impact on margins or working capital? We are managing, as a last con call also, I said that our policy is hedging policy. So whatever we book, we maintain our stock quantity in every, मतलब कुछ भी रहेगा, हम लोग प्राइस की वॉलेटिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, हम हमारा स्टॉक मेंटेन और स्टॉक हेज करके चलते हैं. Okay, sir. Thank you for the answers. That's all from my side. Thank you. Thank you, ma'am. The next question is from the line of Kishore Patel, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon. सर 5-6 महीने पहले आपने बताया था और कंपनी ने वो जाहिर किया था कि एनएससी पर मेन बोर्ड लिस्टिंग होने वाला है, तो वो प्रोसेस का क्या हुआ है सर? एनएससी पे हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया है. हाँ, तो अभी एनएससी मेन बोर्ड लिस्टिंग में जनरली 2-3 महीने का टाइम लगता है. तो अभी हम लोगों ने 5-6 महीने पहले जैसे आपने बोला, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बोला कि हमारा प्लानिंग है करके एनएससी में लिस्टिंग करने का, और हम लोगों ने उसको समझो ना कि भाई 1 या 1.5 महीना हुआ है हमको, बिफोर 1 और 1.5 मंथ हम लोगों ने उसको एप्लीकेशन किया है. तो अभी स्क्रूटिनी एनएससी की जो चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सब भी ऑन गोइंग है. ओके सर. तो कितना एक्सपेक्ट करें कि ये नेक्स्ट मंथ में या ये मंथ में हो जाएगा कैसा? हमारे एंड से तो पूरा प्रोसीजर चल रहा है. वो तो एनएससी अपनी इंडिपेंडेंट उसका है भाई परव्यू, वो अपने हिसाब से काम करते हैं. ओके सर, थैंक यू. Thank you, sir. The next question is from the line of Ganesh Varan, an individual investor. Please go ahead. Yeah, thank you. Good afternoon, sir. मेरा क्वेश्चन था वो कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो था, एक 750 kg से 1500 kg, सो उस पर कुछ अपडेट दे सकते हैं क्या कि वो कितना हुआ है और उसका कमीशनिंग कब तक हो जाएगा? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ऐसा है कि एक फ्लोर हम लोगों ने 500 kg का जो करा लास्ट ईयर पे 93% का अचीवमेंट ले लिया था. इस साल हम लोगों ने और भी एक फ्लोर ऐड किया है, और उस फ्लोर पे हम लोगों ने 50% 250 kg का और एक प्लान करके रखा हुआ है कि अगर 500 to 750 kg का जो टारगेट के ऊपर काम करेंगे तो वो यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हमारे मतलब सेटअप सब रेडी है. अभी जैसे ही ये डिमांड सप्लाई की जो बात है, जहाँ पे अगर डिमांड आती है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को. तो पूरा सेटअप रेडी है फॉर 750 kg में. समहाउ ये गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वांटम पे इम्पैक्ट आया हुआ है. वो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर उसको रिकवर होने में लगेंगे, तो फिर वो यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो जाएगा. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. The next question is from the line of Arvind Jadhav, an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Please Hello. go ahead. Yes. सर अभी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या रहेगा अपने? हम लोग अभी एक्सचेंज पे डालेंगे. अभी हम लोग उसका प्रिपरेशन चल रहा है. अभी एक हमको सिर्फ ऑफलाइन आया है. अभी नेशनल चेंज से हमारा एक ऑर्डर बुकिंग अभी आएगा, मतलब आ गया है ऑलमोस्ट. तो 1-2 दिन में हम उसको डालेंगे ओवरऑल वर्किंग करके. ओके. और हम लोग का अभी जो एंटिक में हमारा जब थोड़ा ज़्यादा काम है, तो हम सेल्स बढ़ाने के लिए एंटिक से छोड़कर रेगुलर इसमें जाने का कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है. एंटिक एज ए ब्राइडल कैटेगरी ह्यूज कैटेगरी है, और उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट है डिजाइन लैंग्वेज के. तो सभी सेगमेंट के कस्टमर अलग है, तो हम उसी सेगमेंट को अगर बढ़ाएंगे तो भी हमारा वॉल्यूम ग्रोथ आ जाएगा. तो इससे अच्छा कि हम कुछ अदर प्रोडक्ट या रूटीन प्रोडक्ट में शिफ्ट करें.
हमारे पास ऑलरेडी 4 कलेक्शन है और चार कलेक्शन में एंटीक में सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, उसमें भी पोटेंशियल बहुत है। उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भी ब्राइट कैटेगरी से डेली वेयर पे आ जाए। अच्छा, और ये गोल्ड प्राइस का जो इतना वोलेटिलिटी, इतना कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हम लोग का ऐसा कोई प्लान है कि कोई कंपनीज कर रहे हैं कि कस्टमर के पास से गोल्ड लेके उसके ऊपर काम करके वो वापस बेच रहे हैं, तो उसमें उनको इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है एंड उनका मार्जिन भी अच्छा रहता है, तो ऐसा कुछ प्लान है कंपनी? जॉबर्ग मॉडल या क्या बोला आपने, समझा नहीं मैं। कि कोई लोग जैसे स्काई गोल्ड है तो कस्टमर के पास से गोल्ड लेते हैं, उसके ऊपर काम करके वो उनको दे देंगे, वापस देते हैं। हाँ, नहीं वो मेरा ऑलरेडी जो नेशनल प्लेयर्स है वो भी एडवांस मेडल देते ही है। हम लोग काम करते ही है ना, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है ना उसमें। डेफिनेट वो तो अच्छी ही बात है। हम लोग भी उसके ऊपर फोकस कर ही रहे हैं और हम भी काम कर ही रहे। जॉबर्ग मॉडल में भी हमारा काफी इसमें ये जो करंट क्वार्टर में भी या पूरे साल में भी जॉबर्ग का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है एडवांस मेडल का। ओके, तो ये Q4 जो है वो कंपेयर टू Q3 के कंपैरिजन में बेटर रहेगा या कैसे लगेगा? होपफुली वी आर, अभी जैसे मैंने बताया कि जो गोल्ड प्राइस स्टेबल हुआ है तो वहाँ से ही चीज़ें काफ़ी, ऑर्डर की साइकिल वापस से स्टार्ट हो गई है, कस्टमर डिमांड वापस स्टार्ट हो गई है, डिस्पैचिंग स्मूथ हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है जो इस क्वार्टर में हमको होपफुली लग रहा है कि भाई अभी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। ओके, थैंक यू जी। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one now. Participants who wish to ask questions, may please press star and one at this time. The next question is from the line of Kaustubh Agarwal from Oaklane Capital Management LLP. Please go ahead. Yeah, thank you. Sir, ये retailers इन्वेंट्री स्टॉकिंग लेवल्स रिड्यूस कर रहे हैं क्या गोल्ड प्राइसेस की वजह से? स्टॉकिंग रिड्यूस नहीं कर रहे, दे होल्ड देयर परचेस। उनका स्टॉक रिड्यूस करने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि अभी कंज्यूमर माइंडसेट क्या है उनको भी पता नहीं है। पहले कस्टमर 100 ग्राम का प्रोडक्ट भी ले रहा था, 80 ग्राम का प्रोडक्ट ले रहा था। अभी इस भाव में कस्टमर किस वेट रेंज की प्रोडक्ट चूज करेगा उसका बजट के अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग कंपेयर टू दिस करंट गोल्ड प्राइस है, तो दे होल्ड देयर न्यू परचेसेस। सर, इसका रिड्यूस करने का कोई प्लान नहीं है, ऐसा है। ऑर्डर फ्लो पे कुछ इम्पैक्ट है क्या? ऑर्डर फ्लो पे लास्ट क्वार्टर पे इम्पैक्ट था। अभी गोल्ड प्राइस स्टेबल हो गई है, जैसे मैंने बताया कि वो परचेस उन्होंने होल्ड किया, किसी कॉर्पोरेट्स ने अपने डिस्पैच होल्ड करवाए, समहाउ ऑर्डर कंप्लीट हो गए, डिस्पैच होल्ड करवा दिए। तो ये सब चीजें हैं जो एक टेम्पररी, जो इतना हाइक हो गया था गोल्ड में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वेट एंड वॉच की पोजीशन में कि भी लेट्स अभी देखते हैं प्राइस क्या होता है। तो दे होल्ड देयर ऑर्डर, देयर डिस्पैच, देयर परचेस। लेकिन वही मैं बोला कि अभी जैसे ही ये गोल्ड प्राइस स्टेबल हुई तो अभी चीजें स्मूथ हो गई है, डिस्पैच शुरू हो गया है वापस से। जो उनका ऑर्डर्स था वो भी में डिस्पैच हमारा शुरू हो गया है, नए ऑर्डर आने रिलीज होने शुरू हो गए हैं, तो नई साइकिल अभी शुरू हो रही है। ओके, और सर ये वेडिंग और फेस्टिव और ये डेली सेगमेंट, डेली वेयर जो ज्वेलरी सेगमेंट्स है उसका करंट डिमांड ट्रेंड्स कैसा है? वेल, एज ए इंडियंस हम लोग ओकेशन फेस्टिव्स उसको पूरी तरीके से एंजॉय करते ही है। तो गोल्ड डिमांड कहीं पे भी, इवन मतलब ये गोल्ड प्राइस बढ़ा है तो कस्टमर के लिए तो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए कि उनका खुद का जो एसेट बढ़ गया। समहाउ जिसके घर में शादी है वो लोग का अभी थोड़ा टेंशन है, लेकिन जिसके ऑलरेडी परचेस कर चुके, जिसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है कस्टमर के पास, दे आर हैप्पी। गोल्ड प्राइस बढ़ा तो उनका एसेट बढ़ गया है, ठीक है। तो
डिमांड और फेस्टिव सीजन्स, सेलिब्रेशंस, ये सब कोई रुकने वाले नहीं है, ये सब चलने ही वाले हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिख रहा है। ओके सर, हम कुछ इंटरनेशनल B2B पार्टनरशिप्स या फिर एक्सपोर्ट्स का कुछ देख रहे हैं क्या? देखिए, अभी जैसे डोमेस्टिक जो हमारा जो नेशनल चेंज का जो टारगेट है, पहले तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि कुछ नेशनल चेंज है जो अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, मतलब ग्लोबली जा रहे हैं ब्रांड्स जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट है। अगर उनका ही पाइपलाइन में एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर, उनके स्टोर्स नए अगर ओपन हो रहे हैं ग्लोबली, तो वहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी एक्सपोर्ट में B2B शो करेंगे और क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे, ऐसा प्लान नहीं है। जो भी नेशनल चेंज है अपनी इंडिया की, दे आर लुकिंग टू एक्सपांशन देयर ग्लोबल विजन, तो उसमें हमको भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. The next question is from the line of Pooja Mishra from JM Financial. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Sure. So, my first question is there any plan to move up the value chain from pure B2B manufacturing toward design, IP ownership or brand licensing? क्वेश्चन आपका मैं समझा नहीं मैडम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्या B2B से आगे बढ़कर डिजाइन, IP या ब्रांड लाइसेंसिंग की कोई योजना है? Jenny, can you answer this question? Sorry? Yes, so I will take this question. Currently, we are focusing on design IP, so which is a very interesting subject currently going on. तो जो भी हम लोग कंपोनेंट्स या ज्वेलरी में जो भी डिजाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग अभी डिजाइन IP पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग समझो ये साल में अगस्त से मोस्ट प्रॉब्ली अपना प्लानिंग स्टार्ट है कि हम लोग पेटेंट्स के लिए भी फाइल करेंगे। जो भी हमने यूनिक कंपोनेंट्स डेवलप किए हैं, यूनिक शेप्स हमने इन हाउस डिजाइन किए हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक या कंपोनेंट डिजाइन, उसको हम लोग डिजाइन IP से क्रिएट करने का प्लानिंग हमारा ये ईयर में अगस्त से अपना प्लानिंग चालू रहेगा। ओके। और सर, प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज का ट्रेंड कैसा है आपका? मीन्स क्या आगे बढ़ के ये बढ़ने की संभावना है या? जी, सो अगर प्रोडक्ट में इफ देयर इज एनी इनोवेशन, समथिंग न्यू व्हिच इज अटेनेबल इन द मार्केट, सो उसका अपने को इंक्रीज इन मार्जिन भी मिलेगा, मेकिंग चार्जेस भी अपने को इंक्रीज मिलेगा। बट बिफोर दैट currently we are only focusing on design innovation. ओके, तो ठीक है सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Yes, thank you. Thank you, ma'am. The next question is from the line of Meet Mehta, an individual investor. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. सर, अभी सर आप क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या वॉल्यूम डिग्रोथ कितना था अपना इस क्वार्टर? इस क्वार्टर में वॉल्यूम हमारा 29% डिग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सर तो क्वार्टर कंपैरिजन। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सर ये जो अपना Q3 है, ये टिपिकली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है। लास्ट FY25 क्वार्टर 3 और FY26 क्वार्टर 3, इसमें 29% का डिग्रोथ है। ओके सर, मेरा एक ये पूछना था कि जैसे अपना क्वार्टर 3 स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है बिकॉज ऑफ वेडिंग एंड फेस्टिविटीज की वजह से, तो ये मान के चल सकते हैं कि जो आपके रिटेलर्स हैं उन्होंने अपना स्टॉकिंग थोड़ा सा कम कर लिया है बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से, या दे आर मोर कंजर्वेटिव? नो, मैं आपको ऐसा उसका आंसर दूंगा कि अगर उन्होंने समझे तो भाई गोल्ड प्राइस इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ होगा। देखिए, अगर कस्टमर डिमांड रहेगा तो कोई भी रिटेलर्स ऐसा नहीं चाहेगा कि अपना स्टॉक कम करके कस्टमर डिमांड को फुलफिल करे। अगर कस्टमर डिमांड है तो वो स्टॉक कम क्यों करेगा? पहली बात तो यही है सर। ओके, तो कस्टमर डिमांड ही कम हो गई थी
उसकी वजह से उन्होंने अपना मतलब नया परचेज भी स्टॉप किया। और जो अभी मार्केट कौन से पकड़ में जाएगा गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर भी कुछ कंफ्यूजन है। कस्टमर कौन सी प्राइस सेगमेंट में जाएगा, ये सभी कंफ्यूजन के लिए उन्होंने अपना नया परचेस नहीं किया, लेकिन पुरानी इन्वेंटरी या उनके जो बफर स्टॉक रहते होंगे, जो उनके हिट स्टोर्स रहते हैं, वहाँ पे कुछ स्टोर्स रहते हैं जो कम चलते हैं, वहां से इन्वेंटरी कम किया होगा और मैनेज किया होगा कहीं ना कहीं, और अपना नया परचेस होल्ड किया होगा, क्योंकि मार्केट कौन सी दिशा पकड़ेगा वो अभी कुछ पता नहीं था। तो ये पूरा इस क्वार्टर में ही ये सब हुआ है, जो मेन क्वार्टर रहता है वेडिंग सीजन का। ओके, सो सर एक जो अपना पिछला क्वार्टर की जो ऑर्डर बुक थी वो कुछ अराउंड 110 करोड़ की थी, तो अभी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर बुक कितना है एंड उसी रेट पे ग्रो कर रहे हैं? अभी जैसे मैंने बोला कि जो प्राइस जो होल्ड था, जो कुछ पिछले ऑर्डर होल्ड थे वो डिस्पैच होना शुरू हो गए हैं, नए ऑर्डर्स भी हमको आए हैं। उसका ओवरऑल वर्किंग समराइज करके हम 1-2 दिन में डालने वाले हैं एक्सचेंज पे। ओके ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स। Yeah, thank you very much. Thank you, sir. The next question is from the line of Dhanraj Tulani from Kuber Advisors. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. सर, हमारा जो अभी जो अनैया डायमंड है या पोल्की सेगमेंट है, तो उसका डिमांड कैसे इवॉल्व कर रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है अभी? उसका कंट्रीब्यूशन स्लो, देखिए अभी जैसे ये गोल्ड प्राइस बढ़ा है तो हम लोग तो उसमें काफी एग्रेशन अभी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव चल रहे थे लास्ट बिफोर द गोल्ड प्राइस हाइक। उसमें थोड़ा स्लो एंड स्टडी वेट एंड वॉच धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, लेकिन समहाउ ये गोल्ड प्राइस अभी जो बढ़ा है और उसका जो रीच कस्टमर के लिए आउट ऑफ द बजट हो गया, तो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कस्टमर जो एस्पिरेस कस्टमर है वो पोल्की और डायमंड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना गोल्ड अरे डायमंड और पोल्की का प्राइस में इतना बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो समझो कि अगर 10 लाख का प्रोडक्ट गोल्ड में लेने जाएंगे कस्टमर, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट अगर डायमंड पोल्की में 10 लाख का लेने जाएगा तो उसको एक प्रिविलेज भी फील होगा, और उसमें 10 लाख के अंदर उसको काफी बड़ी प्रोडक्ट मिलने वाली है डायमंड पोल्की में। तो हम लोग ऐसा है कि भी मैनेजमेंट ने भी ये भी डिसाइड किया है कि भी अभी डायमंड पोल्की जो हाई मार्जिन सेंट्रिक प्रोडक्ट है उसको अपन एग्रेसिवली जाएंगे अभी उसके ऊपर। ओके ओके सर, ग्रेट। एंड सर, जो हमारी प्रीमियम ज्वेलरी है वो अभी जैसे स्केल अप करती जाएगी, तो व्हाट सॉर्ट EBITDA मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? EBITDA मार्जिन देखिए अभी गोल्ड प्राइस भी इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे देता है EBITDA पे, जो लास्ट ईयर से है। लेकिन जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट का ऑलरेडी काम चालू ही है, डिजाइन बैंक हमारी बहुत सारी नई डेवलप हो रही है, बन रही है, हाई मार्जिन डायमंड पोल्की में काम हो रहा है। ये सभी चीजें जब रियलिस्टिक नंबर्स पे जनरेट होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट EBITDA पे आने वाला ही है सर। ओके ओके सर। एंड सर, डिजाइन से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक अप्रोक्स कितना टाइम का हमारा ड्यूरेशन क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट का? फ्रॉम डिजाइन टू फाइनल प्रोडक्ट? हाँ हाँ, यस सर। वो डिपेंड्स, मतलब वो उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल है। जैनिक बेटर आंसर दे पाएगा उसका, जैनिक को इसका आंसर दे। So yes, so generally design to final product takes around 45 to 60 days, but again depending on the intricacy and the use of components we are taking, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। सो मोटा मोटा मान के चल सकते 45 to 60 days लगता है, और अगर फाइन और वेरी हाई ज्वेलरी डिजाइन अपने को करना है तो 90 days तक भी जाता है ये। ओके ओके सर, क्रेडिट साइकिल कैसा है? कितना क्रेडिट देते हैं हम अभी? क्रेडिट साइकिल कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है सर। ओके, अप्रोक्स कितने दिन का करते हैं? मोटा मोटी आप 15 to 20 days का साइकिल रहता है जनरली। ओके ओके, ग्रेट सर, दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. As there are no further questions from the participants,
I now hand the conference over to Mr. Ganesh from Kirin Advisors Private Limited for closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Ashapuri Gold Ornament Limited. If you have any further queries, you can write us at research@kirinadvisors.com. Once again, thank you everyone for joining the conference. Thank you, sir. On behalf of Kirin Advisors Private Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you. Thank you.